Assalamu alaikum Okay. warahmatullahi wabarakatuh. I welcome you all on behalf of IRC. This is Dr. Nazneen Akhtar, the in charge of Technical Institute, Fazilpura. And as you all know, we have launched the 360-degree Career Readiness Program. And in this program, we are providing professional IT training courses for our students, for our youth, to make them employable. Today, I'm really, really pleased and very, very happy to welcome Sheikh Kamran Ahmed. He holds the master's degree in data science from a very prestigious university of India, that is BITS Pilani. So, yeah, huge respect from my side. And another reason why I feel that I respect him is that he has shifted from mechanical engineering into IT, and that journey definitely must have been very tiring and exhaustive. सो एक बहुत ही सिंसियर और डेडिकेटेड इंसान ही इतना बड़ा शिफ्ट और वो भी डेटा इंजीनियरिंग में ले सकता है, बिकॉज डेटा इंजीनियरिंग एक बड़ा कोर्स है एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्किल स्टैक, यानी बहुत टेक्निकल स्किल्स को उनको वो करना पड़ा है. The most impressive thing is that I didn't knew him personally. I just searched him in on LinkedIn, made him gave him my number and requested him to call me on my number, and he was very sincere to call me back, because in my message I told him that I am representing IRC and I want guidance for my student. So मुझे उनकी एक सिंसेरिटी और डेडिकेशन बहुत पसंद आई कि उन्होंने बहुत सिंसियरली वक्त मांगा टू टू रिसर्च एंड प्रिपेयर अ वेरी गुड एंड एग्जॉस्टिव सिलेबस, और उन्होंने वो सिलेबस मुझे पहले प्रेजेंट किया. तो उस सिलेबस को जब वो प्रेजेंट कर रहे थे एंड व्हेन आई वाज लिसनिंग टू हिम, मुझे जो मेरा एक फैसला है जो मैंने आईआरसी के लिए किया है कि माय ट्रेनर्स विल कम फ्रॉम इंडस्ट्री, उसका मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि व्हेन अ पर्सन वर्किंग इन इंडस्ट्री स्पीक्स, he speaks a different language. I've been into training, I have been into academia for 20 years, but what language I speak and what these trainers speak is totally different. And that really, really makes me feel happy that my students will get to learn from really experienced people. So his hard work and dedication makes him really suitable to deliver the course. And this course will be delivered together by him, because it will be a very huge course. Some part of this course I will be handling, and major part of this course will be handled by him. Without any further ado, I request Kamran to please take over. Kamran, please. Yes. Thank you so much, ma'am, for this lovely introduction and for your very kind words. Thank you so much for that. And yes, so I like really I actually wanted to have this like I really had this thought in my mind to reach out to students to help them guide in some way or form. But अल्लाह की तरफ की बात थी वो. I think आपने reach out किया और मेरा वो टाइम पे अवेलेबल रहना भी आई थिंक एक अल्लाह की तरफ की बात थी. So I think yes, so definitely I have done a bit of research so before taking this webinar. So I just had this discussions with my colleagues also about this data engineering, and I was going through bit of my academics also in the past couple of days. So what we can present to the students in a very short time that we have, like we only have this 1 hour. So I have prepared this presentation. So let me go to this slide. Okay, so for today's webinar, our agenda is clear. So I have made out a few points that we will discuss in this webinar. First and foremost, we will go through a bit of introduction. I think after this very generous and very kind introduction about me from ma'am, I don't think I need to introduce myself anymore. But I'll give you a brief about my education as well and my journey into data engineering, how I transformed from mechanical to data science. I can give a short brief onto that one. And then we will move on to our main subject of this webinar, that is data engineering. So we will start with the introduction of data engineering.
In that, we will see what is data engineering. We'll try to understand basically like what exactly is data engineering and how does data engineering team or how does a particular data engineer works in IT companies, especially if they are working for a larger client or they are working with a larger data sets. And later we will see. So there are these three roles, that are very popular amongst freshers and among, like data enthusiasts, what we call data engineer, data analyst, and data scientist. So these are the three roles that I want to discuss, and I want to elaborate on these roles, and we will just get a clear understanding of what each role and what each individual, like a data engineer, what do, and what does a data analyst do, and what does a data scientist do. So I want to give that a clarity. I have discussed this particular point with ma'am also, before this webinar, and I've told like I wanted to have this because I have interacted with a lot of freshers and with a lot of students especially who come to this field and they are not aware about this, like they don't know what exactly the role is. So we will explore that, and then we'll understand the data life cycle, what exactly a life cycle of a data is, from where it starts, from where it ends, what are all the steps that a data goes through in between. So we'll understand that. And we'll also see what are all the perks of becoming a data engineer. So why you should choose a data engineering as your career. And I am assuming most of the students are freshers here or are in their academics right now. So I think this is a very good time to learn, and this is a very good time to get guided. So we will go through that as well. And at the end of the day, we'll talk about a course that we are planning, inshallah, to launch about data engineering. Okay, so let me give a short but very brief introduction about myself. As you may know, my name is Sheikh Kamran Ahmed. You can call me Kamran. And so I come from Parvani. So I'm from Parvani. I have done my engineering, as ma'am has mentioned, in mechanical engineering. So I have been in Aurangabad for almost about 4 to 5 years when I was doing my engineering. So I completed my engineering from there, and then I moved to Pune. And from there, I completed my postgraduate diploma actually in data science and data analytics from one of the very famous institutes of India. And later on, I got placed into my current company where I'm working as a data engineer right now. So after this education, I didn't stop myself, about education. So I enrolled myself into a MTech program, which I have, Alhamdulillah, successfully completed last year only. It was 2 years of 2 year of degree, and I think it was something that I have taken as a challenge. So when especially some students who come from non-IT background and they switch, so we are seeing this trend actually. So a lot of students are transitioning from non-IT background or non-IT educational background especially into IT, and they are making a great career into this one. So I think it's also as a challenge, as ma'am has mentioned also, it is actually very hard for us. So whenever we are coming from non-IT background, because in our academics or in our graduation or in our engineering, we don't learn much about IT, especially our fundamentals are not that strong compared to an IT graduate or a computer science graduate. So we have to work extra harder. So that's something I've taken up as a challenge. And I wanted to also mention that after transitioning into it, I can clearly see the differences because you work harder. When you are transitioning from a non-IT background to an IT background, it requires you to work harder. So I think that is something really helpful in the long term. And yeah, and so talking about my current journey, like my professional career. So when I started working as a data engineer, I started, so I have done a lot of personal projects before joining this company. And like in my personal projects, I have a lot of data science projects in my portfolio. I'll share the link with you also, you can explore that.
So this is something we will also talk about in the later part of this PPT, and I'll explain to you why exactly it is very important to do all these projects, like personal projects or self-made projects, and how it will help you also in becoming or in transitioning into IT careers. That is something I would like to discuss in the later part of this PPT. And yeah, so I've been working as a data engineer from like past from almost past 4 years, and Alhamdulillah, I've been very fortunate enough to be able to work in to be able to work for different clients, and so I work for a service-based company. And so I have worked for different clients. I have worked with different tools and technologies, and I have also learned many tools, while I was working in this company. So that's something that everyone has to do. So yeah, that's a short description about myself. And the other 2 points that I want to, mention. So first up is the motivation for this webinar and the expectation from this session. So first, when we are talking about the motivation, so my motivation, especially for this webinar or for this course that we are going to launch, inshallah, very soon, is that to help and guide, especially freshers who are like who will take like who will start thinking about their career after they graduate. And that important time, that will take a lot of time, like let's say if a student has completed their engineering or their graduation, and then they'll start exploring all the other field that they can go to. And in that meantime, they will like spend around 1 year 6 months, like that time. So I want to, guide, especially the freshers who have just graduated into from their graduation, from their engineering, and from whatever field or from whatever degree that they have done. So I want to guide them and make them understand what exactly through this webinar, what exactly are the opportunities, especially in the data domain, especially about the data engineering field that I'm currently working on. So this is my motivation for this webinar. And the expectation from you is from this session is that I want to make it as much as interactive as possible. So it's not like this I'm talking only and you're just listening. So this will not be a good interaction, I think. I've also discussed this with ma'am, and she also suggested the same. I think we want to make it more interactive than a lecture. So we don't want to make it a lecture where you just have to, see the PPT and just listen to my speech. We certainly don't want that. And we will, inshallah, will try to keep it as much interactive as possible. So you can definitely ask the questions. So I'll give two windows for asking the question. So after each slide, you can ask the question. I'll give some time, if anyone has any particular question on that particular page. And then we will keep a Q&A session at the end of this presentation. Okay. Okay. We will move on to our first slide, which is Introduction to Data Engineering. So first and foremost, we will start with what is data engineering. And are you guys comfortable with complete English, or I should like mix it up with English and Urdu? You can talk back. पार्टिसिपेंट्स में से कोई एक हमें बता दें कि आपको क्या मुनासिब रहेगा, कि सर जी मिक्स ऑफ लैंग्वेज बोलें या फिर टोटल इंग्लिश वुड डू। इंग्लिश प्लस उर्दू मैम। ओके ठीक है, सर, तो चलेगा। मिक्स बोलिए सर। ओके ओके, ठीक है, ठीक चलेगा, फाइन। थैंक यू फॉर द फीडबैक। Okay, so we will start with what is data engineering. So if I have to give you a technical definition of what is data engineering is, so I can give you like data engineering is the process of designing and building various systems for first of all collecting, storing, and transforming the large amount of data sets from different data sources. This is a technical, very technical, very hard to understand definition of data engineering. You won't get much idea from this, but if you have some background in it, you will get an idea from this definition. So basically, it's a system where we design and where we collect the data, where we store the data, and where we transform the data. So this is the whole part of data engineering.
I want to explain it to you about this data engineering with an example, with a real world analogy. So I have one image here actually. So if you see, यहाँ पे आप जो देख रहे हो, this is a, what is this? This is a water system, like water pipeline system, what we call as, correct? आप यहाँ पे देख रहे होगे, we have this one water source here, lake और reservoir, what we call. So basically ये अपना जो पानी का सिस्टम होता है ना, जहाँ से पानी जैसा अपने एक डैम से या रिजर्वायर से जो वाटर सोर्स होता है अपना, वहां से लेके अपने घर तक कैसा आता है, that whole system replicates data engineering. If you just switch that water to data, I'll explain it to you in more easy way. Let's understand this image first and then we'll move on to the data engineering part. So यहाँ पे क्या हो रहा है, डेटा सोर्स है हमारा, लाइक वाटर सोर्स है, नॉट डेटा सोर्स, सॉरी। यहाँ पे एक वाटर सोर्स है, लेक या रिजर्वायर या डैम जो भी कहते हैं उसका, वहां से पाइपिंग के थ्रू पानी आ रहा है एंड इट इज गोइंग टू मल्टीपल लोकेशंस और मल्टीपल असेंबली पॉइंट्स या कोई पॉइंट्स बोल सकते हैं बीच में। फॉर एग्जांपल सेडिमेंटेशन या फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन, तो अलग अलग पॉइंट होते हैं उसके बिफोर इट गेट्स स्टोर्ड into large tanks, and then from that large tanks the water gets distributed to our houses, to our businesses and other part of the city, correct? सो अगर आप डेटा इंजीनियरिंग का देखोगे यहाँ पे, सो इट इज एग्जैक्टली सेम, बस आपको यहाँ पे क्या करना है, वाटर को डेटा से रिप्लेस करना है। अब यहाँ वाटर सोर्स है तो हमारा भी कोई एक डेटा सोर्स होगा जहाँ पे डेटा जनरेट होगा। फॉर एग्जाम्पल डेटा कहाँ का जनरेट हो सकता है, एप्लीकेशन पे जनरेट हो सकता है, एप्लीकेशन के थ्रू जनरेट हो सकता है, कोई वेबसाइट के थ्रू जनरेट हो सकता है। आजकल के सोशल मीडिया के जो सोशल मीडिया का दौर है, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यहाँ पे आप देखोगे तो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स यहाँ से जनरेट होते हैं रोज ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो ये अलग अलग डेटा सोर्सेस हैं। कंपनीज वाइज अगर आप देखोगे तो कंपनीज के भी अलग अलग कुछ पर्टिकुलर वेबसाइट्स होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं जहाँ पे डेटा जनरेट होता है, कस्टमर का डेटा होता है। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी मार्केटिंग में है तो उसका मार्केटिंग मार्केटिंग डेटा होता है, किसी का कोई प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल ई कॉमर्स, फ्लिपकार्ट, amazon, अजियो वगैरह आप यूज करते होंगे, तो उसमें जहाँ पे आप जो भी वो करोगे, परचेस करोगे, कोई चीज खरीदोगे, तो वो डेटा जनरेट करता है और वो डेटा स्टोर होता है कहीं ना कहीं। तो वो क्या हो गया, एक डेटा सोर्स हो गया। मतलब वहां से जहां से डेटा जनरेट होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज डेटा सोर्स। एंड देन वहां से डेटा सोर्स से आके फिर बाद में वो अलग अलग जगह पे जाएगा। आई हैव एन image for you to explain, so you can understand in a better way. So we have, let's say, multiple sources of data from where data our data is coming from. For example, source one, source two, source three. Source one समझ लीजिए कोई हमारा एक एप्लीकेशन है जहाँ से डेटा जनरेट हो रहा है एंड वी हैव टू कलेक्ट दैट। सोर्स टू समझ लीजिए एक हमारी कोई वेबसाइट है, एप्लीकेशन है या कोई भी है, वहां से जनरेट हो रहा है। सोर्स थ्री समझ लीजिए कि हमारे कस्टमर का डेटा है। तो ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पे है, हम उसको क्या करेंगे, वो डेटा को हमको लेकर आना है उसको, व्हाट वी हैव टू डू, उसको डेटा को लाना है। सो अभी वो डेटा को लाएंगे कैसा, वो डेटा को लाएंगे कैसा, वो हमको तो जो उसका सिस्टम डिजाइन करना पड़ेगा। सो दिस होल सिस्टम कलेक्ट फ्रॉम कलेक्टिंग द डेटा टिल स्टोरिंग द डेटा, सो वॉट एवर वी आर डूइंग इन बिटवीन, दैट वी विल कॉल एज डेटा इंजीनियरिंग। सो हम क्या करेंगे, पहले डेटा कलेक्ट करेंगे जो जहाँ से जनरेट हो रहा है, उसके बाद उसको क्या एक्सट्रैक्ट, सो बेसिकली इसको ईटीएल या ईएलटी भी बोलते हैं। ये आपको टर्म बहुत काम आएगा अपने डेटा इंजीनियरिंग में भी। तो फिर जस्ट अ सेकंड, लेट मी एक्सप्लेन दिस डायग्राम एंड आई विल कम बैक टू यू। So in this ETL, what we will do is what we are doing here is first we are, so first आप एक उसका वो समझ लीजिए, ETL या ELT का फुल फॉर्म। तो ETL का फुल फॉर्म है एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड, और ELT का सिर्फ आगे पीछे होगा, एक्सट्रैक्ट लोड ट्रांसफॉर्म। तो बेसिकली इस ELT में होता क्या है, एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट यानी कि डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है सोर्स से, एंड देन एक्सट्रैक्ट करके क्या करना है, ELT, एल है, फिर लोड है, उसको लोड करना है। कहाँ लोड करेंगे हम उसको, डेटाबेसेस में लोड करेंगे या डेटा वेयरहाउस में लोड करेंगे उसको। एंड देन व्हाट वी विल डू, वी विल ट्रांसफॉर्म इट। ट्रांसफॉर्म यानी क्या करेंगे हम उसको, अब मेरे पास फॉर एग्जांपल बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हैं जो जनरेट हो गए मेरे सोर्स से, मैंने उसको एक्सट्रैक्ट भी कर दिया, मेरे डेटाबेस में लोड भी कर दिया। अब मुझे उसको ट्रांसफॉर्म करना है।
वो बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स को मैं कस्टमर को या मेरे कंपनी में किसी मैनेजमेंट को या फिर मैनेजर को, जो भी डिसीजन मेकिंग पावर जिसके पास भी है, उनको अगर वो चीज दिखाऊंगा, दे वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड. आई हैव टू मेक इट इजी फॉर देम एंड आई हैव टू मेक दैट बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ डेटा इनटू अ रीडेबल फॉर्मेट. वो कैसे कर सकते हैं? पहले तो हम उसको फिल्टर आउट करेंगे कि भाई मुझे फॉर एग्जांपल किसी को पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, किसी को मार्केटिंग डेटा है किसी के पास, एंड दे ओनली वांट टू सी फॉर एग्जांपल इंडिया का डेटा देखना है उनको कि भाई इंडिया में उनका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट, इंडिया के मार्केट में कैसा काम कर रहा है. सो व्हाट दे विल डू आफ्टर लोडिंग द डेटा इनटू डेटा warehouse, they will transform that data and they will just filter out the data so they can only get data for particular location. So in our case India. फिर उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसमें अगर कुछ डेटा एनोमली होगी या फिर डेटा में कुछ जैसा कि बैड डेटा जिसे कहते हैं, उसमें मतलब कुछ कॉलम्स या कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे आ जाते हैं जो दे आर नॉट रीडेबल, सो वी हैव टू एलिमिनेट देम. सो वी विल डू ऑल दिस काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन है. सो हम इसको अलग अलग तरीकों से ट्रांसफॉर्म करते हैं. वी विल सी दैट इन द लेटर पीपीटी लाइक हाउ वी कैन ट्रांसफॉर्म दैट. एंड देन फिर उसको ट्रांसफॉर्म करने के बाद व्हाट विल डू, दे विल एनालाइज दिस. उसके बाद फिर इसको प्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ पीपीटी, लाइक इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स और इन द फॉर्म ऑफ डैशबोर्ड्स. तो ये फिर हायर मैनेजमेंट के पास जाएगा. दे विल बी एबल टू easily see the data through their dashboards and reports. Correct? Okay. Someone has the question. Yes, please go ahead. सर आपने जो बताया ETL पाइपलाइन, ये भी जी. डाटा एनालिटिक्स के से ही दिख रहा है पूरा? डेटा एनालिटिक्स का नहीं है, ये डेटा एनालिटिक्स से पहले का पार्ट है. ये डेफिनेटली एक आगे वाली स्लाइड में मैंने एक डिफरेंशिएट किया है डेटा एनालिस्ट वर्सेस डेटा इंजीनियरिंग वर्सेस डेटा साइंटिस्ट. ये तीनों के अलग अलग रोल है, स्पेसिफिक रोल है. लेकिन स्पेसिफिकली जो ETL पाइपलाइन या ELT पाइपलाइंस होते हैं वो मोस्ट ऑफ द केसेस में डेटा इंजीनियरिंग का पार्ट होते हैं. डेटा एनालिस्ट का पार्ट इसके बाद शुरू होता है, जहां से उनको जो लोड किया हुआ ETL के बाद का जो पार्ट होता है, जहां से उनको ट्रांसफॉर्म किया हुआ जो डेटा मिलता है, उसके बाद दे विल डू ऑल द एनालिसिस. फिर उसके बाद उसको जिस पे डेटा बनाना, उस पर काम करना, उसकी रिपोर्ट्स बनाना, फिर देन क्रिएटिंग द डैशबोर्ड्स, ऑल दीज थिंग्स नो कम अंडर डेटा एनालिस्ट. ओके. ओके Hey, सर. Kamran, I have a one question. Can I ask you? Yes, yes, please go ahead. So there are the so many sources are there now. So from that we are ingesting the data, right? So which tool Correct. we are using for that ingesting data? Yes, good question, I would say, and it's a bit technical question as well. So we have a lot of ETL tools actually in today. If you go to any like if you search for any ETL tool on Google, you will find a lot of. So there is one called as very famous ETL tool called as Informatica. There is one from Spark. I'm not correctly remembering the name, but there is one from Spark as well, ETL tool. And there is also one tool that I have worked with, which is called as Matillion. So these are the ETL tools. तो ये टूल के अंदर क्या होता है, मतलब बहुत सारी अलग अलग फंक्शनैलिटीज होती है इनके अंदर. And that tool is so powerful that all these things, whatever an ETL pipeline does, so that particular tool will do exactly. So without, so अगर आप मॉडर्न डेटा टूल्स में देखोगे तो ऐसे ऐसे टूल्स आ गए हैं जो जो मतलब एक वेरी लो कोड नो कोड टाइप कोड है, बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आप. So these are the tools that we use to extract or ingest the data or extract the data from sources. So through Spark also we are using for the ingesting data, correct? Yes. So through Spark also we are processing data, correct? यस यस वी कैन. सो स्पार्क कैसा है, एक थोड़ा लेगेसी सिस्टम हो गया, उसमें कैसा है हेवी कोडिंग वगैरह लगती है. सो इट्स अ बिट टफ एक्चुअली. एंड इन द मॉडर्न डेटा टूल्स अ लॉट ऑफ कंपनीज आर मूविंग इन थ्रू लाइक टू दिस मॉडर्न डेटा टूल्स, especially from Azure and AWS. So they are offering like very native services through their cloud platforms. And if you see their tools, that they are so much powerful that most of the companies are transforming into this tool, transferring their data or their ETL pipelines into this tool. So Kamran, in this scenario we can use the ingesting for the Kafka. Is it a possible? Yes, we can use for this like ingesting the data. So Kafka is basically used for streamline for streaming purposes.
इन मोस्ट ऑफ द केसेस काफका मतलब जो स्ट्रीमिंग डेटा होता है उसके लिए यूज होता है काफका। अभी हम फंडामेंटल लेवल से जाएंगे, पहले बैच प्रोसेसिंग का देखेंगे, फिर स्ट्रीम प्रोसेसिंग का देखेंगे, और देन विल अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। Okay. Thank you, Kamran. या ओके, सो दिस इज ELT पाइपलाइन। ELT में हम क्या करते हैं, पहले एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर लोड करते हैं, देन ट्रांसफॉर्म करते हैं। वी ऑल्सो हैव दिस ETL प्रोसेस। सो there is very basic difference in ETL versus ELT. So just understand here through this diagram. So यहाँ पे भी आपको वही दिख रहा होगा, यहाँ पे डिफरेंट डेटा सोर्सेज है। फॉर एग्जांपल कोई अलग डेटाबेस से जहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे डेटा, या फाइल्स है, CSV फाइल, JSON फाइल, XML फाइल, कोई एप्लीकेशन है, SAS एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर सर्विस एप्लीकेशन, या एप्लीकेशन इवेंट है, वेब हुक हो गया, जैसा कि अदर एग्जांपल्स, एंड थ्रू APIs। तो दीज आर आवर डेटा सोर्सेज। एंड ETL में हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करने के बाद वी विल ट्रांसफॉर्म द डेटा फर्स्ट बिफोर लोडिंग इट इनटू अ डेटा वेयरहाउस और डेटाबेस। करेक्ट। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ETL एंड ELT। सो जो हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, either we will do it before loading in ETL and after loading in ELT. So this is the only basic difference in ETL process and ELT process. Okay, so I hope you may have understood about the data engineering, what exactly is data engineering through this real world analogy and examples. And I will explain the role of data engineer in the data ecosystem. I have one image actually. Through that we'll get to understand the like the role of data engineer in the data ecosystem. But first, let's just understand the key responsibilities of a data engineer. So what are the key responsibilities of a data engineer? To make the data pipelines, to work with ETL tools, to work with ETL concepts, and to work with data warehousing tools. For example, in data warehousing tools, we have these tools called as Snowflake. So Snowflake हो गया, और Snow अपने AWS का Redshift हो गया. So these are the data warehousing tools currently. We'll also try to understand what exactly are the data warehouse in the later PPT. But first, let me get this. Any more question on this slide? Okay, I'm taking the silence as no, and we will move on to the next slide. Okay. So this is something that I wanted to explain. So you have understood what exactly is a data engineer, उनकी क्या क्या roles and responsibilities होती है data engineer की. Now we will just understand what are the differences between a data engineer, a data analyst, and a data scientist. So ये तीन role हैं. I think ये बहुत confuse होते हैं students इसमें actually. So I have made this table, just to segregate all these things about each specific roles, and it might differ depending upon the company, depending upon the project, because एक particular role वाला भी कोई दूसरी चीज भी कर सकता है. That there is no difference, like there is no doubt about that. But a role like particularly in data engineer, in data analyst, or in data scientist, what exactly are their focus, what exactly are their output, and what are the tools that each role uses. We'll just explain through this table. So first we will take this data engineer role. So data engineer का सबसे ज्यादा फोकस क्या होता है? मेन क्या है उनका? डेटा को लाना है अपने को. कहाँ से लाना है? जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ, जो डेटा सोर्सेस हैं वहां से हमको डेटा लाना है. So their main focus would be on infrastructure and pipelines. So they will create these systems and they will create these pipelines and all these architects. And through this, the data will come from data sources till our data warehouse and databases. So this is the only thing. Basically, प्लम्बर के जैसा है. मतलब अभी जैसा एग्जांपल के थ्रू बताया ना, आपके घर में पानी कैसा आ रहा है, कहाँ कहाँ से होते हुए कैसा कैसा आ रहा है, वही एग्जैक्टली डेटा इंजीनियर कर रहा है डेटा के साथ. डेटा सोर्स से ला रहा है, उसको फिल्टर आउट कर रहा है, फिर उस पर ट्रांसफॉर्म कर रहा है, एंड देन मेकिंग अ पाइपलाइन थ्रू इट. तो उसको बार बार कैसा लाना नहीं पड़े. अब रिकॉर्ड्स ऐसे हो गए हैं कि जितना भी डेटा आ रहा है, इस बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स, अब उतना डेटा को कंटिन्यू मॉनिटर नहीं कर सकते, ना मैनुअली ला सकते हैं.
सो इसीलिए हमें एक ऑटोमेटेड पाइपलाइंस और एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है जो कंटिन्यू रन करते रहे। जैसा मेरा डेटा है, लेट्स फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे डेटा जनरेट हो रहा है, दिन 24 घंटे, 24/7 डेटा जनरेट हो रहा है, राइट? नाउ आई हैव टू एक्सट्रैक्ट दैट डेटा एंड टेक दैट डेटा इनटू माय सिस्टम और इनटू माय डेटा वेयरहाउस और इनटू माय डेटाबेसेस, right? So I have to make such pipelines and such infrastructure that my system won't get eliminated. मतलब कि वो एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जो मतलब ऐसा ब्रेक नहीं होगा बीच में और कंटिन्यू डेटा आता रहेगा। जैसा डेटा जनरेट हो रहा है, इट विल गेट ऑल दिस ट्रांसफॉर्मेशन डन and then it will come into my data warehouse. So this is the main focus of data engineering: infrastructure and pipelines. Now, what is the output a data engineer produces? Clean and structured data. There are certain cases where we have to work with some like semi-structured data, unstructured data. उतना टेक्निकल में अभी नहीं जाते, बट अभी के लिए सिर्फ बेसिक आउटपुट और एक ओवरव्यू में आप ये समझ लीजिए कि हमें क्लीन और स्ट्रक्चर्ड डेटा डेटा इंजीनियर प्रोवाइड करेंगे. सो दिस इज द आउटपुट अ डेटा इंजीनियर विल प्रोवाइड. एंड व्हाट आर द टूल्स अ डेटा इंजीनियर यूजेस? सो टूल्स तो बहुत सारे हैं उसमें. मैंने सिर्फ यहाँ पे कुछ टूल्स मेंशन किए हैं जो थोड़े फेमस हैं और जो ज़्यादा यूज होते हैं. फॉर एग्जांपल SQL, Python. So these are the two programming languages data engineer uses. SQL हो गया, Python हो गया. And then we have Spark and Airflow. So these are all the famous tools and most widely used tools. इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं. फॉर एग्जांपल AWS के अगर आप नेटिव सर्विसेज में जाओगे, उसके डेटा इंजीनियरिंग के व्हाट आर ऑल द ऑफरिंग्स AWS ऑफर्स. सो आप उसमें बहुत सारे अलग अलग सर्विसेज देखेंगे, जैसा कि S3 हो गया, Redshift हो गया, इसके अलावा ग्लू हो गया. सो दीज आर ऑल द सर्विसेज एंड ऑल द टूल्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट. सो आई हैव मेंशन्ड अ फ्यू हियर ओनली जस्ट टू अंडरस्टैंड एंड गेन लाइक अ बेसिक ओवरव्यू ऑफ दिस रोल. सो दिस इज द डेटा इंजीनियर रोल. इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पाइपलाइंस, इतना याद रखिए आप, ये फोकस होता है मेन डेटा इंजीनियर का. नाउ कम्स द डेटा एनालिस्ट रोल. सो डेटा एनालिस्ट में हम क्या करेंगे? what we'll do, we data analyst will do reporting and insights. अभी जैसा कि मेरे पास लेट्स से एक मेरी कंपनी है, डेटा इंजीनियर ने उसका काम कर दिया, क्लीन स्ट्रक्चर्ड डेटा लाके डेटाबेस में या डेटा वेयरहाउस में दे दिया मुझे. नाउ कम्स द डेटा एनालिस्ट. वो क्या करेगा? वो जो क्लीन डेटा मेरा पड़ा हुआ है डेटा वेयरहाउस में या डेटाबेसेस में, वहां से वो क्लीन डेटा लेगा एंड again it will go back to the management or go back to the requirements. Exactly requirements क्या है, वहां से रिक्वायरमेंट के बेसिस पे इट विल देन ट्रांसफॉर्म इट अगेन. एंड अब डेटा एनालिस्ट का पार्ट आप ये समझ लिए, डेटा एनालिस्ट का सिर्फ रिपोर्ट्स बनाना या डैशबोर्ड बनाना नहीं है. इन मोस्ट ऑफ द केसेस डेटा एनालिस्ट विल बी क्लीनिंग द डेटा और ट्रांसफॉर्मिंग द डेटा, क्योंकि डेटा इंजीनियर ज्यादा ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा डेटा. जैसा डेटा आ रहा है बस थोड़ा बहुत एलिमिनेट करके, थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्म करके उसका आउटपुट लाके दे देगा, क्योंकि डेटा पूरा एलिमिनेट नहीं कर सकते बिफोर टेकिंग दैट, लाइक बिफोर दैट डेटा कम्स इनटू डेटा वेयरहाउसेस. तो उससे पहले वो काम, ज्यादा काम कौन करेगा? डेटा एनालिस्ट करेगा. वो फिल्टर आउट करेगा, वो ट्रांसफॉर्म करेगा डेटा. उसको बहुत ज्यादा डेटा मैनिपुलेशन करना होता है, जिसे हम बोलते हैं डेटा मैनिपुलेट करना होता है. सो अ डेटा एनालिस्ट विल डू ऑल दीज क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मिंग डेटा, एंड देन दिस पार्ट कम्स आफ्टर क्लीन डेटा. वी हैव टू मेक लाइक डैशबोर्ड्स हो गया, रिपोर्ट्स हो गया. I hope everyone has a bit of understanding on the terminologies that I'm using, like dashboards, structured data, and other things. एंड आई थिंक 1 घंटे में हम उतना और बेसिक में तो नहीं जा पाएंगे, बट आई विल शो यू. ये जी कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं सर, और जी. इसमें से कुछ बच्चे हैं जिनका ऑलरेडी डेटा एनालिसिस वाला, पावर बीआई वाला पार्ट चल रहा है, तो थोड़ा बहुत दे आर अवेयर ऑफ Okay, थिंग्स. okay, okay. Then yeah, then it's fine. I think they'll get the terminology, basic terminology. यस यस यस. Okay, fine. So फिर डैशबोर्ड और रिपोर्ट्स बनाएंगे डेटा एनालिस्ट, एंड so we'll see what are the tools. So डेटा एनालिस्ट के लिए एक्सेल इज अ वेरी पावरफुल टूल, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, जहाँ पे डेटा इन लार्ज स्केल या लार्ज वॉल्यूम में है, बहुत ज्यादा डेटा है, तो एक्सेल उसके आगे काम नहीं करता. एक पर्टिकुलर लिमिट है एक्सेल की भी, आफ्टर दैट एक्सेल विल स्टॉप वर्किंग, उसके आगे काम नहीं कर सकता है. अगर आप देखोगे तो डेटा एनालिस्ट के लिए एक्सेल इज अ वेरी वेरी पावरफुल टूल. अगर आपका डेटा छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, देन एक्सेल इज अ वेरी गुड टूल. उसमें आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, उसमें आप डैशबोर्ड बना सकते हैं,
ऑल दिस थिंग्स। तो डेटा एक्सेल भी एक ना पूरा एक अलग टॉपिक है, उसको पूरा पढ़ना ना इस आई थिंक इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो एक्सेल एक्सेल हो गया, फिर उसके बाद क्वेरिंग के लिए हम एसक्यूएल यूज करते हैं। डेटा हमारा डेटाबेसेस में पड़ा है, डेटा वेयरहाउस में पड़ा हुआ है, उससे इंटरैक्ट कैसे करेंगे? वी विल यूज एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। Through SQL queries, we will extract the data from databases. We will filter out the data as per our requirements. So SQL is a must. In all these three roles, SQL and Python, I would say, is a must. तो आपको ये दो चीजों पे बहुत फोकस करना है, SQL हो गया और Python हो गया। Now comes the visualization part in data analysis. So we have Power BI and Tableau. So these are the two market leading tools that are available currently in the market. So most of the companies Power BI पे भी shift कर रही हैं, Power BI यूज कर रही हैं, क्योंकि इसका लाइसेंस जो है थोड़ा सस्ता है कंपेयर टू Tableau। Tableau के भी कुछ अलग से फीचर्स हैं जो Power BI में अवेलेबल नहीं है, बट इट इज डिपेंडेंट अपॉन द कंपनी और अपॉन द क्लाइंट what tools they want to use, because इसमें क्या होता है ना, बहुत सारे बजटिंग का भी इशू आता है, सो दे विल लुक इनटू दैट। बट आप इसमें से कोई एक भी अगर पढ़ लोगे या कोई भी एक कर लोगे, पावर बीआई भी आप कर लोगे, तो आई थिंक दैट वुड बी सफिशिएंट। सो टैबल्यू अगर नहीं भी कर रहे हो या पावर बीआई कर रहे हो, तो आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ। ओके, नाउ द थर्ड एंड फाइनल रोल इज आर डेटा साइंटिस्ट। तो डेटा साइंटिस्ट का क्या होता है? मेन फोकस मॉडलिंग एंड प्रिडिक्शन। So in data science, what a main focus is, क्या करेंगे वो? मॉडल्स क्रिएट करेंगे। कौन से मॉडल्स? मशीन लर्निंग मॉडल्स। सो अब जो डेटा था मेरा, डेटा इंजीनियर ने लाके दे दिया डेटा वेयरहाउस में। डेटा वेयरहाउस से उसको डेटा एनालिस्ट ने ले लिया, उस पर और ट्रांसफॉर्म किया उसको, एंड देन दे हैव क्रिएटेड सम डैशबोर्ड्स एंड रिपोर्ट्स ऑन दैट यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट टूल्स। नाउ कम्स द डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट क्या करेगा? वही क्लीन स्ट्रक्चर डेटा उठाएगा। वो डेटा साइंटिस्ट भी उसको डेटा क्लीन करना पड़ेगा। जब तक वो क्लीन डेटा नहीं देगा, जब तक उसके डेटा में एनोमली रहेंगी, तब तक मॉडल, द मशीन लर्निंग मॉडल वोंट गिव द करेक्ट प्रिडिक्शन और करेक्ट रिजल्ट। इट वोंट गिव द हायर एक्यूरेसी डेटा साइंस के लिए। सो आप तीनों में देखोगे, ट्रांसफॉर्मेशन और जो क्लीनिंग का पार्ट आ रहा है वो बहुत आ रहा है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पाइथन पे, एसक्यूएल पे कमांड लेना पड़ेगा, क्योंकि डेटा का ऐसा इशू है, आपको ऑटोमेटिक या रेडीमेड जिसे डेटा कहते हैं, वो रेडीमेड डेटा नहीं मिलेगा। यू हैव टू मेक दैट डेटा यूजेबल। अगर आप रॉ डेटा देखोगे, जो जैसा जनरेट होता है डेटा, जो जेसन फॉर्मेट में होता है, सीएसवी फॉर्मेट में होता है, या एक्सएमएल फॉर्मेट में होता है, या एचटीएमएल फॉर्मेट में होता है, वो डेटा को पूरा क्लीन करते करते इट विल बी लाइक 60 to 70% of your work will be, especially in data science or data analyst role, it would be to on cleaning part of the data। क्योंकि डेटा अगर आप लार्ज स्केल से या बहुत बड़े डेटा के साथ काम कर रहे हो, तो बहुत रेयर होगा ये आपको, और इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट द क्लीन डेटा डायरेक्टली फ्रॉम द डेटा इंजीनियर। तो डेटा साइंस में या डेटा एनालिस्ट वाले रोल में आपको क्लीनिंग ट्रांसफॉर्मेशन बहुत करना पड़ेगा, और उसके लिए हम मोस्टली एसक्यूएल और पाइथन यूज करते हैं क्लीनिंग के लिए और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो डेटा साइंस का यही रहेगा कि मॉडलिंग, प्रिडिक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, क्लीनिंग डेटा, ये सब रहेगा। और उसका मेन आउटपुट क्या रहेगा? प्रिडिक्टिव मॉडल्स। तो बहुत सारे इसमें एमएल मशीन लर्निंग मॉडल्स है, सुपरवाइज है, अनसुपरवाइज है, उसमें बहुत सारे अलग अलग लाइब्रेरीज है, डिपेंडिंग अपॉन द डेटा और डिपेंडिंग अपॉन व्हाट दे आर ट्राइंग टू अचीव थ्रू दैट मॉडल, सो दे विल यूज ऑन दैट वन। सो वो भी डेटा साइंटिस्ट को ही फाइनल करना होता है कि कौन सा मॉडल मुझे यूज करना पड़ेगा दैट इट विल गिव मी द हायर एक्यूरेसी। these are all the things a data scientist will do। and what are all the tools? Python हो गया, R हो गया, ML libraries and other things। इसमें पाइथन और ये आर अगर आपको देखने फर्स्ट टाइम देख रहे होगे, आर जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, जहाँ पर फाइनेंशियल डेटा होता है, मोस्टली नंबर्स डेटा, नंबर न्यूमेरिकल डेटा होता है जिसे कहते हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, फॉर एग्जांपल इन बैंक्स और इन इंश्योरेंस कंपनीज, जहाँ पे भी ट्रांजैक्शनल डेटा या फाइनेंशियल डेटा आ गया, वहाँ पे मोस्टली कंपनीज आर यूज करती है, बट इट इज वेरी लिमिटेड। मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर मूविंग टुवर्ड्स पाइथन ओनली एंड यूजिंग पाइथन ओनली। सो आप पाइथन भी सीख ले, आर नहीं भी सीखे, तो आई थिंक दैट वुड बी सफिशिएंट। बट आर है एक थोड़ा बेसिक ओवरव्यू के लिए, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आप सीख सकते हैं। और उसके बाद बहुत सारे अलग अलग एमएल लाइब्रेरीज है पाइथन में, दैट
we have to use while creating the ML models, while we are creating the predictive model. So वो भी हम explore कर सकते हैं. Okay. So I hope everyone now has a clear picture of what a data engineer is, what a data analyst is, and what a data scientist is. Any question on this? How much time for Python and SQL courses? What Python exactly time? Python and SQL. So we cannot. So if you are asking only about Python and SQL, so I would say if you have to learn only SQL and Python, it will take around 2 months, I would say. If you learn on a regular basis, SQL you can maybe take a month, and for Python is basically a very vast programming language. So first you will have to understand what exactly you are learning the Python for. If you are learning for data scientist or data analyst, so there are some certain libraries and core Python that you will have to learn. So I would say 2 to 3 months it will take to learn, like to at least gain some basic to intermediate command on these two, SQL and Python. 2 to 3 months. Thank you. Okay. Any more questions, or should I move forward? सर Yes. Tawfiq? सर जैसे Hmm. सर कंक्लूजन के तौर पर जैसा सबसे पहले जो काम होता है डेटा क्लीनिंग और डेटा कलेक्शन का डाटा Hmm. इंजीनियर का होता है, फिर उसके Yes. बाद डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट का काम होता है ना? Correct. Yes. हाँ, यही है उसका. मेरे पास अभी एक नेक्स्ट स्लाइड में एक अच्छी डायग्राम है. स्पेशली है वो मैंने इसीलिए इसमें प्रेजेंटेशन में रखी है. सो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट लाइक द डेटा लाइफ साइकिल, मतलब कौन सा पार्ट, कौन सा रोल पहले आता है, एंड व्हाट एग्जैक्टली दे आर डूइंग आफ्टर दैट. सो okay, we'll move on to the next question if no one has the questions on this one. So this is the thing, the Tawfiq, that you're talking about. So in this you will understand the life cycle of data. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमको एक डेटा की लाइफ साइकिल देखना है. तो एक अच्छी डायग्राम भी मिली थी मुझे, एक्चुअली मैं गूगल से ही निकाली थी. So if you see here, डेटा लाइफ साइकिल में क्या है एग्जैक्टली. सो डेटा लाइफ साइकिल, डेटा का जनरेशन, मतलब वेयर एग्जैक्टली डेटा इज गेटिंग जनरेटेड टिल द एंड. मतलब एंड क्या होगा उसका, कंज्यूमर या भी जो भी एंड यूजर रहेगा वहां तक जो पहुंच रहा है डेटा, ये दो के बीच में जो आएगा, दैट इज द होल लाइफ साइकिल ऑफ अ डेटा. फ्रॉम जनरेटिंग द डेटा, कहाँ से जनरेट हो रहा है, एंड टिल द एंड यूजर. एंड यूजर कोई भी हो सकता है, आपका कोई कस्टमर हो सकता है, कोई कंपनी का मैनेजमेंट हो सकता है, जो कंपनी को मतलब कंपनी का डेटा है तो कंपनी देखेगी, उसका मैनेजमेंट के पास जाएगा कि वो एंड यूजर हो सकता है उसका. तो दिस इज द क्या बोलेंगे, A to Z साइकिल ऑफ अ डेटा. तो फर्स्ट हम क्या एक अंडरस्टैंड करेंगे डायग्राम के थ्रू. फर्स्ट पार्ट क्या है, डेटा कलेक्शन एंड स्टोरेज. दिस होल पार्ट कम्स अंडर डेटा इंजीनियरिंग. तो सबसे पहले डेटा इंजीनियरिंग का काम आएगा. डेटा इंजीनियर ये क्या करेगा, डेटा कलेक्ट करेगा जहां से डेटा जनरेट हो रहा है, एंड देन इट विल स्टोर इट यूजिंग सम बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड व्हाटएवर ऑल द रिक्वायरमेंट्स देयर आर. राइट, डेटा कलेक्शन स्टोरेज हो गया. देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज डेटा क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन. एक बार डेटा स्टोर हो गया है, what we'll do is we will clean the data and then we'll transform the data. अब डेटा क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब डिपेंड करता है डेटा पे और आपकी जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उस पे. सो दिस इज द सेकंड पार्ट. एंड थर्ड पार्ट इज डेटा एक्सप्लोरेशन एंड एनालिसिस. डेटा एक्सप्लोरेशन एनालिसिस क्या है, अब जैसा कि मेरे पास बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है, मार्केटिंग का डेटा पड़ा हुआ है फॉर एग्जाम्पल. अब उसको मुझे एक्सप्लोर करना है, मुझे थोड़ा उसमें से ट्रेंड निकालना है, पैटर्न निकालना है. डेटा का कुछ तो यूज करना होगा ना. सिर्फ अगर डेटा कुछ काम नहीं आ रहा है, जस्ट रॉ डेटा पड़ा हुआ है, तो जस्ट अ वेस्ट, उसका कोई काम नहीं है. मुझे डेटा एक्सप्लोरेशन में क्या करना होगा, आई विल हैव टू एक्सप्लोर द डेटा. उस पर अलग अलग एनालिसिस करने होंगे. फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी मैंने बताया था मार्केटिंग का डेटा है एग्जांपल. मार्केटिंग के डेटा में मुझे देखना होगा कि मेरा प्रोडक्ट है कोई XYZ, और मेरा प्रोडक्ट अलग अलग कंट्रीज में बिकता है, ये अलग अलग कंपनीज में यूज होता है. तो कौन सा मेरा प्रोडक्ट है, मतलब कौन से कंट्री में ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जहाँ पे सप्लाई नहीं पहुंच पा रहा है, या व्हाट आर ऑल द प्रॉब्लम्स देयर. तो यू ऑल दिस क्वेश्चन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड थ्रू डेटा एक्सप्लोरेशन एंड एनालिसिस. और यही मेन डेटा का पर्पस है.
कि दिस डेटा, इसको हम डेटा ड्रिवन डिसीजन भी कहते हैं। कंपनीज जो आज डिसीजन लेती है इन मोस्ट ऑफ द मेजर और एमएनसी कंपनीज और मोस्ट ऑफ द फॉर्च्यून 500 कंपनीज, ऑल these decision that they make at the higher level, these are all data driven। अगर उन्होंने ऐसा कोई वो नहीं करते कि अब फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट है, उनको किसी कंट्री में लॉन्च करना है, फर्स्ट व्हाट दे विल डू, जो भी डेटा उनके पास अवेलेबल है वो कंट्री का और प्रीवियस प्रोडक्ट उनकी जो सिमिलर प्रोडक्ट्स है वो कंट्री में, दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्रू डेटा, और उसके थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे एंड देन दे विल लॉन्च देयर प्रोडक्ट, और डायरेक्टली इससे लॉन्च नहीं करेंगे। सो डेटा इज दैट रियली पावरफुल। एंड ये जो दो पार्ट है बीच के, डेटा क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेटा एक्सप्लोरेशन एंड एनालिसिस, दीज टू कम्स अंडर डेटा एनालिस्ट। डेटा कलेक्शन स्टोरेज डेटा इंजीनियर कर देगा, उसके बाद डेटा क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सप्लोरेशन एनालिसिस ये करेगा डेटा एनालिस्ट। एंड लास्ट पार्ट है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स में मोस्टली हमारा जो आता है वो है मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग मॉडल्स। हम मशीन लर्निंग के, डीप लर्निंग के जो मॉडल्स होते हैं, और जो ये लास्ट वाला पार्ट है ये मतलब रेयर पार्ट है थोड़ा। हर कंपनी, स्मॉल कंपनी या मिड लेवल कंपनी यूज नहीं करती मशीन लर्निंग डीप लर्निंग मॉडल, क्योंकि इसको एक तो ये कॉस्टली है, इसके रिसोर्सेज कॉस्टली है। अगर आप कोई डेटा साइंटिस्ट हायर करोगे तो उसका पैकेज भी तो बड़ा होगा, वो भी कंपनी को देखना होता है। तो और उसके सबसे ज्यादा पहले ये देखना होगा कि जो डेटा साइंस वाला जो एनालिटिक्स वाला पार्ट है, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है तो जो थोड़ा कॉस्टली होता है, और सिर्फ मतलब जिनके पास ज्यादा डेटा अवेलेबल है उन्हीं में काम कर सकता है। This is something a data scientist will do, predictive analytics. So it will create ML models, deep learning models on all these things. And और ये अभी मैं आपको सिर्फ एक बता दिया एग्जांपल के तौर पे, डेटा साइंटिस्ट का ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो एक ही सिर्फ एमएल मॉडल्स ही बनाएगा। They will also have to do data cleaning and transformation. They will also have to do some data exploration, analysis, reporting, dashboarding, and all these things. So data, depending upon the company and the company's budget, एक डेटा साइंटिस्ट हायर कर लेंगे, उससे दोनों तीनों वाले काम करवा लेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो यू विल हैव टू लर्न दीज थिंग्स। अगर आप डेटा इंजीनियर हो तो आप बोलोगे नहीं मैं सिर्फ ये फर्स्ट पार्ट ही कर लूंगा एंड देन माय पार्ट विल बी ओवर, नो। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड एटलीस्ट बेसिक ओवरव्यू, बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आनी चाहिए आपको। और मैंने जैसे अभी बताया था डेटा क्लीनिंग का, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का, ये आपको तीनों में से कोई भी रोल रहे, डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड and you will have to learn data cleaning and transformation. So this is the most important part, I would say, in the data life cycle. Okay, any question on this? Okay, I'll take the silence as no. Okay, so why someone choose data engineer as their career? So there are, आपके जहन में आ रहा होगा क्वेश्चन कि हम डेटा इंजीनियरिंग में क्यों जाए। यहाँ पे थोड़ा टिपिकल या थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा डेटा इंजीनियरिंग का पार्ट, मे भी हो सकता है दूसरा कोई आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन व्हाई वी शुड चूज डेटा इंजीनियरिंग एज ए करियर। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आप देखोगे अगर आज के दौर में एवरीथिंग इज गेटिंग डिजिटलाइज्ड, हर चीज, स्पेशली इन प्राइवेट सेक्टर में तो ऑलरेडी बहुत कुछ डिजिटलाइज हो चुका है, गवर्नमेंट सेक्शन में भी अब डिजिटलाइज हो रहा है सारी चीजें। एंड डिजिटलाइज होने का सबसे मेन क्या होता है, क्या बोलेंगे, इशू बोल सकते हैं, या फिर उसको एक डिजिटलाइज होने का एक ड्रॉबैक बोल सकते हैं, या फिर उसका एक पार्ट बोल सकते हैं। जब आप डिजिटलाइज होगे तो डेटा जनरेट होगा ही होगा, एंड इफ दे वांट टू यूज डेटा, उनको फिर डेटा इंजीनियरिंग की डिमांड आएगी ही आएगी। तो इट्स अ वेरी हाई डिमांडिंग जॉब इन मार्केट एंड इट्स अ वेरी ग्रोइंग जॉब मार्केट। अगर आप देखोगे, अगर आप लिंक्डइन पे या नौकरी पे आप कहीं भी अगर जाके सर्च करोगे, जस्ट लुक फॉर डेटा इंजीनियरिंग अपॉर्चुनिटीज, देखो अभी कितने सारे डेटा इंजीनियरिंग के अपॉर्चुनिटीज आ गए। एंड और एट द एंड हम किस लिए करते हैं, सैलरी के लिए, पैसे के लिए करते हैं। तो कॉम्पिटिटिव सैलरीज है, करियर ग्रोथ है इसमें, एंड आई कैन आई कैन वॉच फॉर दैट एज वेल। सो कॉम्पिटिटिव सैलरीज हैं, अगर आप अच्छे से करोगे, थोड़ा और मेहनत करोगे, तो आई थिंक यू कैन गेट गुड पैकेज आई थिंक। तो कॉम्पिटिटिव सैलरीज है, और ऐसा नहीं है कि इसमें अगर आप स्टार्टिंग में अगर आपको बेसिक पैकेज भी मिल रहा है तो ग्रोथ नहीं है। इफ यू वर्क फॉर लाइक लेट्स से 2 to 3 years 4 years,
एंड देन आप स्विच करते हो, देन यू विल डेफिनेटली गेट मोर हाइक। सो करियर ग्रोथ भी अच्छी है इसमें। एंड अपॉर्चुनिटीज, जैसा कि मैंने भी बताया, बहुत सारी चीजें डिजिटलाइज हो रही हैं, तो अक्रॉस इंडस्ट्री में इसकी अपॉर्चुनिटीज है, नॉट जस्ट इन आईटी। हमने डेटा को क्या कर रखा है कि सिर्फ एक उसको ना डेटा साइंस या डेटा इंजीनियर या डेटा एनालिस्ट वाला जो रोल होता है, उसको एक आईटी चीज बना दी है। डेफिनेटली एक आईटी के पार्ट है, बट अलग अलग उसमें डोमेन होते हैं। आईटी भी काम करती है तो एक अलग अलग डोमेन भी होता है, जैसा कि फाइनेंस हो गया, फाइनेंस का भी एक आईटी डिपार्टमेंट होता है, हेल्थ केयर हो गया, ई कॉमर्स हो गया, इनका भी आईटी डिपार्टमेंट होता है। सो अक्रॉस इंडस्ट्रीज एंड अक्रॉस डोमेन हम यहाँ पे डेटा इंजीनियरिंग के अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। एंड फाइनल पॉइंट इज, सो अगर आप डेटा इंजीनियरिंग पढ़ोगे, या एटलीस्ट इफ यू चूज डेटा इंजीनियर एज अ करियर, I would say is a foundation for transitioning into other data roles. What do I mean by that is, let's say आपने डेटा इंजीनियरिंग का जितना भी कोर्स है, करिकुलम है, वो पढ़ लिया, और यू आर वर्किंग एज अ डेटा इंजीनियर। लेट्स टेक माय एग्जांपल ओनली। तो आई एम करंटली वर्किंग एज अ डेटा इंजीनियर। मुझे जितना भी डेटा इंजीनियर का, मैंने पाइपलाइन, अलहमदिल्ला पाइपलाइन पे काम किया है, पाइपलाइंस बनाने पे, डेटा वेयरहाउसिंग के साथ काम किया है, क्लाउड के साथ काम किया है, एंड अदर ऑल्सो लाइक बहुत सारे टूल्स पे भी काम किया है। इफ आई हैव टू ट्रांजिशन फ्रॉम दिस रोल, मेरे पास अभी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। मैं अभी यहाँ से स्पेसिफिकली डेटा एनालिस्ट वाले पार्ट में भी जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे डेटा इंजीनियरिंग का रोल है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, अदर थिंग्स भी आते हैं, थोड़े बहुत टूल्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, वो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी, लर्न करनी पड़ेगी। वो तो आपको आई थिंक, अगर आप इसमें करियर बना रहे हो स्पेशली आईटी में, देन आपको जब तक जॉब कर रहे हो तब तक आपको अप टू डेट रहना पड़ता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस एंड यू हैव टू लर्न एवरीथिंग एट योर पॉइंट। सो वो एक रहेगा कि आप इजीली ट्रांजिशन कर पाओगे कोई भी डेटा रोल, स्पेसिफिकली डेटा रोल, डेटा इंजीनियर्स। सो ये बेस बेस के लिए बहुत अच्छा है डेटा इंजीनियर। These are all the points, that why you should choose data engineer as a career. Any question on this? सर मैं पूछूं क्वेश्चन बच्चों Yes, के yes, बिहाफ please, पे? ma'am. Yes, please. सर ये जो 3 जॉब रोल्स है, डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट, इसमें जी, से कौन सा रोल ज़्यादा सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा एडवर्टाइज होता है? ओके। एडवर्टाइज का तो अभी मैं आपको बता सकता हूँ, सबको डेटा साइंस का मालूम होगा। तो एक डेटा साइंस कैसा है कि एक ओवर हाइप भी हो गया है इतना। अगर आप मार्केट में देखोगे तो उसकी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज, डेटा साइंस के या डेटा साइंटिस्ट, क्योंकि हर कंपनी यूज नहीं कर रही है एमएल, मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग, और ये किसी ना किसी लेवल पे ना एक कैसे कह सकते हैं ना कि एक ओवर हाइप भी हो गया है। और एडवर्टाइज का तो पता नहीं मुझे, लेकिन एक ओवर हाइप तो जरूर हो गया डेटा साइंस। लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज है ज्यादा, वो है डेटा इंजीनियरिंग में और डेटा एनालिस्ट में। क्योंकि ये दो पार्ट, अगर कोई कंपनी है, किसी उसके पास कोई डेटा है, तो ये दो पार्ट उसको करना ही करना है, अगर वो एमएल मॉडल यूज करो या मत करो, उसको डेटा को हैंडल तो करना ही है, इसलिए डेटा इंजीनियर लगेगा ही। डेटा पे अगर कुछ उनको एनालाइज करना है, रिपोर्टिंग करनी है या डैशबोर्ड बनाना है, तो उसके लिए डेटा एनालिस्ट लगेगा। तो ये दो चीजें हैं जो आई वुड से देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आप अपनी खुद की भी रिसर्च कीजिए, ये दीज आर ऑल माय फाइंडिंग्स एंड माय रिसर्च, राइट। मैं अपने रिसर्च पे और अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, एंड आई एम नॉट आस्किंग यू टू नो मुझे ब्लाइंडली फॉलो करो, या मेरे जो भी फैक्ट्स है ब्लाइंडली फॉलो करो। आप आपकी रिसर्च भी करो खुद से, आप देखो आपको क्या अच्छा लगता है। अगर आप जब रिसर्च करोगे खुद से, देन यू विल अंडरस्टैंड। अगर आप एक चीज देखने जाओगे, कोई फॉर एग्जांपल कि डेटा साइंस में क्या क्या होता है, तो एक चीज अगर आप रिसर्च करोगे उस पर, तो आपको दो चीज एक्स्ट्रा और पता चलती है। दिस इज हाउ यू गेन नॉलेज इन दिस। सर सैलरी के रेंजेस का कुछ बता सकते हैं आपके? व्हाट एग्जैक्टली सैलरी इन रोल्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यस, तो सैलरी का, सी, द थिंग इज, इट completely डिपेंड्स अपॉन द कंपनी। अगर आप स्टार्टअप्स में या मिड लेवल कंपनीज में जाओगे, यू विल गेट अ गुड पैकेज, क्योंकि वो फिर वैसा एक्सपेक्ट भी करते हैं आपसे। सो सैलरी रेंज अगर आप मिड लेवल में या स्टार्टअप्स में देखोगे ना, तो इट मे बी लाइक फॉर एज अ फ्रेशर 6 to 8 lakhs या 10 लाख से भी स्टार्ट हो सकते हैं, कहीं 10 लाख पर एनम। हम्म। और अगर आप एक बेसिक पैकेज देखोगे, जो बहुत सारे एमएनसी को फ्रेशर को ऐड करते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर स्किल्स, वो हम्म। 4 to 5 लाख होता है। 4.55 लाख ये स्टैंडर्ड पैकेज। अगर लेकिन आप जॉब स्पेसिफिक जाओगे, अगर आप ऑलरेडी ट्रेन होके जाओगे, तो फ्रेशर का आप कैसा है, कंपनी एमएनसी स्पेशली जो ऑफर करती है 4 to 5 लाख वाला पैकेज, ये क्या किस लिए ऑफर करती है, क्योंकि दे आर टेकिंग द फ्रेशर, कि उनको मतलब स्किल ज्यादा नहीं आती, देन दे विल वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट। 6 महीने साल भर के लिए उस पर काम करेंगे, दे विल अपस्किल देम, फिर सारी स्किल सिखाएंगे, इसलिए वो कम पैकेज अप्लाई वो करती है।
अगर आप ऑलरेडी ये सारी चीजें सीख कर जाओगे इंडस्ट्री में देखने के लिए, और एक स्टार्टअप से या मिड लेवल कंपनी से स्टार्ट करोगे, देयर इज हाई पॉसिबिलिटी दैट यू विल गेट अ गुड पैकेज मोर देन 6 to 8 lakhs. ओके, डेटा इंजीनियरिंग की पोस्ट बड़ी है या डेटा एनालिस्ट की पोस्ट बड़ी है? Uh, I don't think we can directly compare this, क्योंकि एक बड़ी छोटी का कोई बात नहीं है. It's just that they are doing different things and different work. और डेटा Okay. लाइफ साइकिल में जैसे एक्सप्लेन किया, वो एक किसी का पहले पार्ट कर रहे हैं, एंड देन डेटा एनालिस्ट डूइंग द सेकंड पार्ट, फिर डेटा साइंटिस्ट डूइंग द थर्ड पार्ट. बड़ी का तो नहीं, बट आई वुड से कि मोर कॉम्प्लिकेटेड पार्ट इज डेटा साइंटिस्ट. तो डेटा साइंटिस्ट का जो होता है, एमएल वाला हो गया, डीप लर्निंग वाला हो गया, दे definitely need a very good understanding and very good hand on programming. They need to have a very good understanding of machine learning and deep learning concepts, and also mathematics and statistics. So these are the things that are more complicated in data science part. एंड Okay. इसलिए भी वो फ्रेशर्स के लिए लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि फ्रेशर्स, आई डोंट थिंक कंपनी एक्सपेक्ट भी करती है फ्रेशर्स से कि ये सब चीजें उनको अर्ली स्टेज में आ जाए, इसलिए दे एक्सपेक्ट समवन एक्सपीरियंस आल्सो. ओके, डेटा एनालिस्ट से बंदा डेटा इंजीनियर भी बन सकता है और डेटा इंजीनियर से डेटा एनालिस्ट भी बन सकता है. दिस स्विच इज पॉसिबल अगर बेटर पैकेज मिल रहा हो तो. यस ऑफ कोर्स, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप दोनों भी चीजें सीख कर रख लो. डेटा इंजीनियरिंग भी है, डेटा एनालिस्ट भी है. डेटा इंजीनियरिंग क्यों उसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप डेटा एनालिस्ट करोगे, सो इट इज वेरी, आई वुड से रेयरली होगा ये कि डेटा इंजीनियरिंग के पार्ट भी पढ़ाया जाएगा उसमें. अगर लेकिन आप डेटा इंजीनियरिंग कर लोगे तो डेटा एनालिस्ट का थोड़ा बहुत उसमें आई थिंक से 50 to 60% या 70% तक भी बोल सकते हैं डेटा इंजीनियरिंग के थ्रू डेटा एनालिस्ट कवर हो जाएगा. There are some certain tools and some technologies that you'll have to learn if you want to transition from data engineer to data analyst. लास्ट अपना जब डिस्कशन हुआ था आपने ये भी कहा था कि सिर्फ ETL टूल पर भी जॉब मिल सकती है. Yes, definitely. So there are certain job roles specifically. So there are ETL developer. If you just go and Google ETL developer, you will find plenty of jobs. So उसमें आपको लेकिन थरोली पढ़ना पड़ेगा, कोई एक पर्टिकुलर ETL टूल लेना पड़ेगा, उस पर आपको अच्छा हैंड्स ऑन करना पड़ेगा. एंड देन अगर आप एक्सपीरियंस हो गए वो चीज़ पे, जैसा कि मैंने अभी मटीरियल पे काम किया, देन आई कैन गो एज अ मटीरियल डेवलपर और एज अ ETL डेवलपर, क्योंकि मैंने वो चीज़ पे काम किया है. देन आई कैन डेफिनेटली ट्रांजिशन इनटू दैट पर्टिकुलर रोल. ETL डेवलपर हो गया, और इसके अलावा फिर बाद में डेटा वेयर हाउस हो गया. डेटा वेयर हाउस में भी दो पार्ट आते हैं, एडमिन पार्ट आता है, डेवलपर पार्ट आता है. That means there is a lot of opportunity even within some tools. Is data engineering वाले bracket में. करेक्ट, डेफिनेटली. सो देर आर डेफिनेटली, डेटा इंजीनियरिंग एक होल पैकेज है. पैकेज के अंदर छोटे छोटे और मतलब जो चीजें हैं, फॉर एग्जांपल डेटा वेयर हाउसिंग हो गया, ETL हो गया, तो उसको एक अलग से एज अ करियर या एज अ रोल भी ले सकते हैं, वो अवेलेबल है मार्केट में. तो हम Okay. ट्रांजिशन कर सकते हैं उसमें स्पेशलाइज्ड करके. ताहिर पूछना चाह रहे थे तीनों में से कौन सा इजी है? इजी, ओके. I would say, like, I wouldn't directly comment कि कौन सा easy है, but if you have the will and if you are sensitive enough, I think आप तीनों में से कोई भी कर सकते हो. ये definitely ये data science वाला complicated हो गया. बचते दो हैं, data engineering और data analyst वाला part. तो data analyst में ज़्यादा parts नहीं है. So I would rank it as in terms of complexity. First is data scientist, then data engineering, and then data analyst. क्योंकि डेटा एनालिस्ट में ऐसा है कि टूल्स या मतलब जो भी सीखना है वो कम है कंपेयर टू डेटा इंजीनियरिंग. डेटा इंजीनियरिंग बहुत बड़ा है एक्चुअली. I guess we could move to the next slide. Okay. So yeah, we are already past 10, so I'll just quickly finish this. So in this so I have prepared this one roadmap to becoming a data engineer. What exactly you will need to become a data engineer, to at least be ready to work as a data engineer. First and foremost is learning the programming, preferably Python and SQL. So these are the two things that you should focus. Like you should focus 110%. If you are taking 2 to 3 months, that is okay, because these are the two tools that you will be working 80 to 90% of your time you will be spending on these two tools if you're working as a data engineer. इसके अलावा भी दूसरे टूल होंगे डेफिनेटली, बट these are the two tools. The other tools are डिपेंडेंट, और इसके बेसिस पे ही दूसरे टूल्स बने.
तो दीज आर द थिंग्स आई वुड सजेस्ट कि प्रोग्रामिंग पे ज्यादा फोकस करना होगा. सो पाइथन और एसक्यूएल प्रेफरेबली. अदर लैंग्वेजेस भी है, जावा हो गया, स्काला हो गया या आर हो गया, बट इंडस्ट्री इज मूविंग टुवर्ड्स दिस पाइथन एंड एसक्यूएल. और इतना सब लर्न करके, इतना सब सीख के, आई डोंट थिंक कि हमें ज्यादा कुछ फायदा होगा. तो उसको शॉर्ट रखते हैं, पाइथन और एसक्यूएल सीख लें. अगर वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है देन यू कैन लर्न. इफ यू आर अगर आप जॉब लग जाती है देन यू कैन लर्न ऑन ऑन देयर एज वेल. बट अगर आप देखोगे तो ये दो चीजें हैं जो ज्यादा अभी डिमांड में है. नेक्स्ट अप इज अंडरस्टैंडिंग द डेटाबेसेस, रिलेशनल. Sorry to disturb, एक क्वेश्चन आया है. I know जी. this guy personally, Fahad Qureshi, बहुत sincere guy है. He asked that if we want to learn both data engineering and data analyst, how much time we require? आई वुड से अ ईयर, 1 साल पकड़ के चलते हैं. और मैं पर्सनली आई वुडंट रिकमेंड टू लर्न बोथ ऑफ दिस थिंग्स, डेटा इंजीनियर भी और डेटा एनालिस्ट भी. डेफिनेटली आप कुछ चीजें जैसा कि पावर बीआई होगा, डैशबोर्ड का, डेटा एनालिस्ट वाले पार्ट से वो भी कर लो. बट अगर आप दोनों दोनों कर लोगे ना तो यू विल गेट मोर कंफ्यूज्ड. आप अपना फोकस ना एक पर्टिकुलर चीज पे या पर्टिकुलर पाथ पे बना के रखो, एंड देन जस्ट गो टुवर्ड्स दैट एंड गो जस्ट गो इनटू दैट डायरेक्शन. अगर आप हर चीज लेने जाओगे ना तो आप एक कोई डायरेक्शन में नहीं जा पाओगे. So I would say कि आपको एक पाथ पकड़ो and then move towards that, and definitely don't stop your learning. अगर आप data engineer हैं, if you are interested in learning Power BI, definitely go ahead. There is no stopping on that. But आप लेकिन एक focus बना के रखो. I would suggest that. जी सर. दोनों के लिए 1 साल I think I would say 1 to 1.5 years पकड़ के चल सकते हैं. जी सर. Okay. Okay, third would be learning the data warehousing and ETL concepts. So first we'll have to understand what exactly are the data warehouses, how does the data warehouse work, because आपका बहुत सारा मतलब बहुत सारा टाइम डेटा वेयरहाउस पे भी जाएगा क्योंकि सारा डेटा आपका वहीं जमा है. So you'll have to understand the data warehousing and ETL concepts. डेटा इंजीनियरिंग में अभी आपको जैसा मैंने बताया पाइपलाइंस पूरे कैसे होते हैं, क्या होते हैं, तो you'll have to understand ETL concepts as well. So these are the top three things in my list that you have to definitely learn on priority if you want to become a data engineer. Next we have फिर बाद में hands on करना होगा. बहुत सारे tools हैं उसमें, we will decide on this like कौन कौन से tools हैं, but they definitely हमको hands on करना बहुत जरूरी है. If you are just learning theoretically, I would say it's कोई भी काम करनी है, it's not of single use. जब तक आप खुद से उसको हैंड्स ऑन नहीं कर रहे हो, जब तक आप वो चीज खुद से पढ़ नहीं रहे हो, जब तक आप वो चीज, फॉर एग्जांपल आप अगर पाइथन या एसक्यूएल सीख रहे हो, आप उसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझ लोगे, बट यू हैव टू अप्लाई दैट. आपको खुद से कोड लिखना पड़ेगा, खुद से आपको वो चीज सीखनी पड़ेगी, वो खुद से वो एरर लेने पड़ेगे. पाइथन में अगर कोई कोड लगा रहे हो, आप सीख रहे हो या एसक्यूएल सीख रहे हो, देन यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस. वो एरर को सॉल्व करना, वो डिबगिंग करना. थ्योरेटिकली तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, बट अगर जब रिक्वायरमेंट आएगी तो एकदम टेक्स्ट बुक रिक्वायरमेंट नहीं आती है. इट विल बी लाइक अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. सो फर्स्ट यू विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ हैंड्स ऑन with whatever you are learning, either on a data engineering part, be it on data analyst part, or be it on a data scientist part. तो hands on करना, उसका प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. अगर आप 2 घंटे थ्योरेटिकली के लिए सीख रहे हो तो आई वुड से 3 से 4 घंटा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा to be able to understand it fully and to be able to clear all your fundamental doubts on that one. Okay, and next point is exploring the cloud platform. So this is the a very important point I would say, because अभी क्या हो गया है, most of the companies जो हैं they are using cloud platforms. And cloud platforms में भी क्या क्या है, AWS है, Azure है, GCP है. So these are the three main and three very popular cloud platforms currently. तो सबसे ज्यादा मार्केट शेयर अगर आप देखोगे तो AWS का है, उसके बाद Azure है, Azure इज फ्रॉम Microsoft, एंड देन GCP इज फ्रॉम गूगल, और AWS Amazon का है. सो दीज आर द थ्री क्लाउड प्लेटफॉर्म्स. इसको आप थोड़ा एक्सप्लोर करो, व्हाट आर ऑल द नेटिव सर्विसेज दे ऑफर स्पेशली फॉर डेटा इंजीनियर. अगर आप इनको देखोगे तो उनके एक पर्टिकुलर सर्विसेज हैं अलग अलग डेटा इंजीनियर के लिए. उनके खुद के डेटा वेयरहाउसिंग टूल्स हैं, उनके खुद के ETL टूल्स हैं, और फिर बाद में उनके अगर आप देखोगे जाके स्पेशलाइज उन्होंने अलग अलग चीजें ऐसी बना रखी है ना, अगर आप करने जाओगे तो उसमें भी एक रोल निकल सकता है. जैसे मैम अभी बता रहे थे डेटा ट्रांजिशनिंग, अगर आप क्लाउड प्लेटफॉर्म भी अच्छा करोगे तो देर आर सर्टन रोल्स आल्सो लाइक AWS डेटा इंजीनियर, Azure डेटा इंजीनियर, GCP डेटा इंजीनियर. तो इसके अंदर भी एक रोल निकल सकता है ट्रांजिशन अगर करना है.
बट आई वुडंट से कि इतने डीप में जाने की जरूरत है। एक्सप्लोर क्लाउड प्लेटफॉर्म्स ऑल दिस थ्री, और इसमें से कोई एक पकड़ लो, अज्योर या AWS प्रेफरेबली, और उसमें से फिर कोई एक सर्टिफिकेशन या कुछ बेसिक उसका जो फंडामेंटल लेवल वाले हैं वो कर लो। अज्योर में है कुछ AZ900 है जो फंडामेंटल कवर करता है। थ्रू दैट अगर आप वो सर्टिफिकेट कर लोगे, माइक्रोसॉफ्ट ही ऑफर करता है वो, अगर आप वो कर लोगे तो यू विल अंडरस्टैंड लाइक द बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ क्लाउड। सैस क्या होता है, पैस क्या होता है। आई आई एम अज्यूमिंग कि ये सब आपने पढ़ा होगा आपके ग्रेजुएशन में, बट अगर वो सर्टिफिकेशन भी आ जाएगा तो एक तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, एंड देन यू विल आल्सो हैव दैट सर्टिफिकेशन टू पुट ऑन टू योर प्रोफाइल, राइट? And now do a lot of projects. So after learning all these things, I would say कि end to end project करने हैं आपने। वर्क ऑन रियल प्रोजेक्ट्स, डेटा ले लो आप कैगल से कहीं और से, वो डेटा सेट लेके देन बिल्ड योर ओन प्रोजेक्ट्स, बिल्ड अ पोर्टफोलियो। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स अलग अलग डोमेन में करके एक कंप्लीट पोर्टफोलियो बना दो। गिटहब रिपॉजिटरी बना के उस पर अपलोड भी कर सकते हैं आप। फिर बाद में पर्सनल वेबसाइट बना सकते हैं आप, पोर्टफोलियो बना सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू, बट definitely build your end-to-end projects at the end of this, and at the end prepare for interviews and some certifications। सर्टिफिकेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर आपके पास चांस है कर सकते हैं तो डेफिनेटली आई वुड से कि गो फॉर इट एंड प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज, मॉक इंटरव्यूज दो। बहुत सारे फिर इंटरेक्ट करो, क्या हो रहा है बाहर, थोड़ा उसको एक बेसिक प्रिपेयर करना होगा इंटरव्यूज के लिए। These are all the things, according to me. So this is the roadmap to become a data engineer. Any question on this? Okay, moving on to the next one. Okay, so our course for data engineering. So as I have discussed with ma'am, we are planning on launching our own data engineering course, inshallah, very soon. So first and foremost, I would just, so whatever the roadmap that I have given you earlier in the earlier slide, so this is the exact pathway or the roadmap I'm going to follow. तो इंशाल्लाह वी विल बी कवरिंग द फंडामेंटल्स एंड डेटा। एक बात आप समझ लीजिए पहले, डेटा इंजीनियरिंग जो है ना ये बहुत वास्ट फील्ड है। बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी कि अगर आप उसका जॉब डिस्क्रिप्शन देखोगे अलग अलग जाके तो बहुत सारों का मैच नहीं होगा डेटा जॉब डिस्क्रिप्शन। बट लेकिन आप अगर अगर आपके फंडामेंटल जो भी है फंडामेंटल लेवल पर अगर आप स्ट्रांग हो जाओगे, then it is very easy to transition and to learn all these things. So my focus would be on this course would be to make your fundamentals very strong. So this will be my main focus on this course. एंड फिर बहुत सारे की मॉड्यूल्स और लर्निंग आउटकम्स हैं, जैसे मैंने बताया डेटा वेयर हाउसिंग का हो गया, कोई एक डेटा वेयर हाउसिंग ले लेंगे, प्रेफरेबली स्नोफ्लेक लेंगे हम, उस पर थोड़ा काम करेंगे, उस पर सीखेंगे, उसका आर्किटेक्चर पढ़ेंगे उसका, एंड ETL पढ़ेंगे कोई एक, और थोड़े और अभी अलग अलग टूल्स हैं इंशाल्लाह वो भी कवर करेंगे। मुझे अभी एक डिटेल में एक करिकुलम बनाना है, इंशाल्लाह आई विल बी प्रिपेयरिंग दैट सून एंड आई विल बी शेयरिंग इट विद मैम। एंड इंशाल्लाह एक बार वो डिटेल करिकुलम बन जाता है ना तो आपको डिटेल और पाथ में समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली करना क्या है, कैसे करना है। आपको भी थोड़ा पिक्चर एक आइडिया आ जाएगा उस पर। And then we will definitely keep hands-on, बहुत सारा hands-on रहेगा। We will definitely keep a lot of projects, different tools पे अलग अलग projects रखेंगे, and at the end we will definitely keep some capstone and real end-to-end projects. And इंशाल्लाह mentorship का support भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जितना हो सके उतना देने की। तो these are our इंशाल्लाह प्लानिंग कर रहे हैं हम इंशाल्लाह इसके हिसाब से अभी डेटा इंजीनियरिंग के लिए देखते हैं अभी उस पर क्या होता है। So these are planning for data engineering for our course particularly, and I will be sharing the detailed curriculum inshallah very soon. So maybe you can have some idea on that one only. Any question on this? Okay, so this is the end, I suppose. We can have a Q&A session. If anyone has any questions, please go ahead. This is your time. इमराना, आप जो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन पांडास एंड नमपाई या बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ क्या है, दीज आर वेरी टेक्निकल क्वेश्चंस। दिस वी कैन डिस्कस 1-to-1 लेवल। जो अभी इस वक्त की ऑडियंस है उसके वो इसका आंसर में कोई खास दिलचस्पी नहीं रहेंगी, तो हम थोड़ा सा इस जॉब रोल को ही समझते और सर का जो अब हमारे पास वक्त बचा है उसमें से हम ये समझने की कोशिश करते कि सर इंटर्नशिप की फैसिलिटीज अवेलेबल होती क्या। जी ओके ओके।
Yes, definitely. There are a lot of internship opportunities, अगर आप देखोगे इंटर्नशाला के थ्रू या लिंक्डइन के थ्रू, तो इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज भी हैं अवेलेबल, बट यू अब हमें मतलब ढूंढना पड़ेगा बहुत सारा, एंड वी विल हैव टू फैसिलिटेट दैट। इजी नहीं है, स्पेशली अगर आप जॉब स्पेसिफिक जा रहे हो तो यू विल हैव टू वर्क ऑन दैट एज वेल। So, but there are some internship opportunities as well. Data engineering हो गया, data science या data analytics वाले part में. So definitely there are internship opportunities. ये सर मेंटरशिप का आपने जिक्र किया था कि मेंटरशिप सपोर्ट रहेगा, तो जी। व्हाट एग्जैक्टली क्या रहेगा, बच्चों को अगर बताएं तो आप। So at the end of this course, what I am thinking is कि हम one to one बच्चों से कनेक्ट करें, एक उनको मेंटर करने की कोशिश करें। So जैसा कि अभी फॉर एग्जांपल इंटरव्यू प्रिपरेशन हो गया, what I will do is what I'm planning on is keeping some mock interviews for the students. अगर किसी को कहीं इशू आ रहा है तो what we can connect one to one with the students, हम साथ बैठ सकते हैं। किसी में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो we can definitely work with them on a one to one level. And also, yeah, I'm thinking, I cannot promise at this moment. I'm planning on, bringing some of my friends who are working in this domain only. We can have some guest lectures as well from them. So ग्रेट, these are the things. Yeah. ग्रेट, ग्रेट, गुड। अच्छा लगा सुन के कि यू आर प्लानिंग सम रियली गुड इनिशिएटिव्स। जी। मेरे जहन में जो एक बात है, मैं बहुत ईमानदारी से जो भी लोग मौजूद हैं उनके सामने, इससे पहले भी मैंने आपसे भी जिक्र किया था कि जी। आई एम लुकिंग आउट फ्रॉम फॉर 5 to 6 सीरियस पीपल जिनको सचमुच में डेटा इंजीनियरिंग में अपना करियर अगर बनाना है, तो सर हम उन पे 100% एफर्ट्स डालेंगे, 100 भी नहीं 200% डालेंगे, और विल मेक एंड सी टू इट दैट दे रीच टू देयर गोल्स। लेकिन इसके लिए ज़रूरत कैसी है कि एक लॉन्ग टर्म सस्टेन्ड फोकस की। बीच में अगर आप, Definitely. बीच में जो वो बोलते हैं ना शाइनिंग ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, कि आप ये जॉब रोल से वो जॉब रोल में इंटरेस्ट हो जा रहे हैं, अब मेरे को फुल स्टैक में इंटरेस्ट आ रहा है, अब मुझे डेटा साइंटिस्ट से बनने का मन कर रहा है या एनालिस्ट करने का, तो हम अगर ऐसे जंप करते रहेंगे बनी रैबिट के जैसा, तो वी विल नॉट रीच एनीवेयर। तो इस कोर्स को करके एक सक्सेसफुल करियर बहुत अच्छे से और सस्टेन्ड रहेगा। डेटा इज नॉट गोइंग एनीवेयर, इंडस्ट्री को हमेशा ये रोल रिक्वायर्ड रहेगा, क्योंकि हम एवरी सिंगल डे हम डेटा जनरेट कर रहे हैं, मिलियंस एंड मिलियंस ट्रिलियंस डेटा जनरेट हो रहा है दुनिया में, उसको संभालने के लिए डेटा इंजीनियर्स चाहिए। सो दिस रोल इज नॉट गोइंग एनीवेयर। व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज अ वेरी सस्टेन्ड एंड फोकस्ड अप्रोच, कि जहां बंदे को पता है कि मेरे को क्या करना है, मेरे को कुछ फिक्स टूल्स है। जैसे क्लाउड है, आपको पूरे क्लाउड को डेप्थ में जाके नहीं समझना है, आप कोई एक क्लाउड को अगर अच्छे से समझ ले, दैट्स विल बी मोर देन सफिशिएंट इनफ। पाइथन में 1,75,000 लाइब्रेरीज है, आपको पूरा पाइथन नहीं सीखना है। आपको डेटा एनालिस्ट के रोल के लिए अलग लाइब्रेरीज लगने वाले हैं, डेटा साइंटिस्ट के लिए अलग लाइब्रेरीज लगने वाले हैं, और डेटा इंजीनियरिंग के लिए अलग लाइब्रेरीज लगने वाले हैं। आपने सिर्फ उतने ही लाइब्रेरी पढ़े डेटा इंजीनियरिंग को जो लग रहे, इट्स मोर देन सफिशिएंट। Correct. एसक्यूएल 100%. फंडामेंटल, एसक्यूएल इज फंडामेंटल, वेरी फंडामेंटल। सो एक फोकस्ड अप्रोच के साथ एक अगर बंदा स्टार्ट करता है, तो ये कोर्स मुझे ऐसा लगता है कि डेटा फील्ड में एंट्री करने के लिए डेटा इंजीनियरिंग और डेटा एनालिस्ट, ये दो बहुत ही इजी रूट्स है। बस इतना है कि वास्ट टेक्नोलॉजी का समंदर है जिसको कि हमको टच करते हुए जाना है, पूरा रट लेना नहीं है पूरा। दे डोंट वांट एक्सपर्ट्स इन अ पर्टिकुलर, दे वांट यू टू हैव नो हाउ, दे वांट यू Correct. टू अंडरस्टैंड कि भाई ईटीएल क्या होता है, मैं कैसे पाइपलाइन बनाऊंगा। आप अगर स्ट्रगल कर रहे हो तो आप 1 से 2 बार रिफर कर सकते हो, आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो, आप 1 से 2 बार यूट्यूब का वीडियो भी देख सकते हो, लेकिन आपको टेक्नोलॉजी का मालूमात रहना, दिस इज व्हाट दे एक्सपेक्ट व्हेन यू गो अप्लाई फॉर दैट पोस्ट। और जब भी आप किसी कंपनी में जाएंगे, टूल्स का डिफरेंस आता जाएगा। आप एक टूल पढ़े हुए हो लेकिन उनके पास दूसरा टूल है, आपको काम मालूम रहना कि ईटीएल कैसे किया जाता है, टूल कोई भी रो। एम आई राइट सर? Yes, yes, 100%. तो इनको डिफरेंट टूल्स बहुत सारे हैं उसमें, आपको बस यही करना है कि अगर आपके पास ETL, जैसे आपने मैम ने एग्जांपल दिया था ETL का, तो अगर ETL आपको बेसिक फंडामेंटल लेवल पता है, अगर आप किसी भी एक ETL पे आपने काम किया है, इट इज वेरी इजी फॉर यू टू ट्रांजिशन फ्रॉम दैट टूल टू अनदर टूल। तो या आपको बेसिक फंडामेंटल अगर पता है तो इजी हो जाता है। So yeah, we are looking out for some serious students and we'll definitely give in our best to do them. So कुछ पार्ट इंशाल्लाह। इसका सर लेंगे जहां पर के इंडस्ट्री का एक्सपोजर रहेगा,
टेक्निकल एक्सपेक्ट्स रहेंगे, जहाँ पाइथन के कुछ कोर की बात रहेगी और एसक्यूएल की कोर की बात रहेंगी, कुछ प्रैक्टिकल्स रहेंगे दैट आई विल बी हैंडलिंग। तो वो मैं और सर बैठ के आपस में डिस्कस करेंगे एंड विल ट्राई आवर बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट। और जैसे सर ने प्रॉमिस किया कि वे और भी अपने कलीग्स को लाकर आपको और एक्सपोजर देंगे, उनके कुछ लेक्चर्स रखाकर मॉक इंटरव्यूज करवाएंगे। मॉक इंटरव्यू का मतलब होता है कि पूरा रियल इंटरव्यू का सीन क्रिएट किया जाएगा, वो भी फील्ड के ही बंदे से, कि जो डेटा इंजीनियरिंग फील्ड का ही जो इंटरव्यू लेते हैं, टीम लीड होंगे या मैनेजर्स होंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर्स। तो यू विल गेट द रियल फील और आप कहाँ स्ट्रगल कर रहे हो आंसर देने में, तो वो भी सर आपको गाइड करेंगे या हम मिलकर गाइड करेंगे। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सीरियस स्टूडेंट्स। आपके तरफ से अभी भी अगर कोई सवाल है तो सर है अभी भी, ऑलरेडी 10:30 अरे सर शायद अभी भी अपने ऑफिस में है ना सर? जी, तो लेट हो जी गया था, मैं बोला यहीं से कर लेता हूँ फिर सेशन। जी जी। तो इफ यू वांट आप सवाल सर से कर सकते हैं, एल्स हम सर को इजाजत दे देंगे क्योंकि ही नीड टू हैव डिनर एज वेल, है ना सर? जी जी। जी। एंड कर दे फिर हम लोग रिकॉर्डिंग और मीटिंग दोनों ही। जी इंशाल्लाह कर सकते चलिए हैं, भी जी एंड कर जी देते हैं जी। जी जी। कुछ भी आपके सवाल रहे, आपके पास हमारा आईआरसी का नंबर है, आप मुझे उस पर कॉल कर सकते हैं। ओके बेटा, चलो अल्लाह जी हाफिज, टेक केयर। चलो, हाफिज, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सर।